میں فقیر قادری سلمان احمد الازہری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون اسلام کے موافق اہل سنت و جماعت کے طریقے پر محمد نفیس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ نغمہ بھی جو محمد اقبال صاحب کی وکالت سے اور دو گواہوں کی موجودگی میں محمود عالم اور فرقان علی 10,786 روپے نقد مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اے محمد نفیس، کیا آپ نے نغمہ بھی کو 10,786 روپے نقد مہر مع نان و نفقہ کے مذکورہ گواہوں کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے جناب محمد اقبال صاحب کی وکالت میں نغمہ بی کو دو گواہوں کی موجودگی میں 10,786 روپے نقد مہر نان و نفقہ کے ساتھ حاضرین اہل سنت و جماعت کے روبرو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے نغمہ بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ قبلت منك لي نكاحها وتزويجها ورضيت بمهرها ونفقتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله۔ فاتحة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفور عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة وسائر أزواج رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما۔ اللهم بارك لهما في خير وجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما في خير وبارك عليهما في خير وجمع بينهما في خير۔ الہ العالمین اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین، اس نکاح کی تقریب کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد اور شرین و فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اس نکاح کی تقریب میں جو دولہا اور دلہن ہے محمد نفیس اور نغمہ بھی، ان دونوں کو الفتوں اور محبتوں کی زندگی عطا فرما، نہ چاکی نہ اتفاقی جھگڑے اور فسادات سے اور شر و فساد سے ان کی زندگی کو محفوظ فرما، شیطان کی شرارتوں سے نفس امارہ کے بہکاوے سے محفوظ فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، آنے والی دلہن کو دولہے والوں کے گھر والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے۔ ان دونوں کے ذریعے سے نیک و صالح عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا ہو۔ اے رب العالمین اس خاندان کو ہمیشہ گستاخان رسول اور بدعقیدگی سے محفوظ فرما۔ ہم سب حاضرین اہل سنت و جماعت کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور ہمارے حاجی محمد ریاض صاحب سلامت نگر سے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک کرسی لے لیے بڑے اچھے سے ان کے لیے نکاح کے بعد جو حضرت کو فوراً نکلنا ہے نا، وقت ہے نہیں اور ٹائم لگانا نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، بیٹھو
बस 4 मिनट की हजरत की बेटे इधर को ही है थोड़ा सा। आवाज़ें बंद कर लें आप। भाइयों मेरी बात तो कम से कम 1 मिनट सुन लें। आप खामोश हो जाएं, आसानी के साथ मिलेगा एक हमारे आगे के जरिए माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। तो आप लोग खामोश हो जाएं, बस एक बंदे की भी आवाज़ ना आए, ठीक है? खामोश हो जाओ। किसी की जो आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बंद कर लीजिए। जो भी 2-4 मिनट की गुफ्तगू इंशाअल्लाह और अजीज सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और जो नौजवान हज़रात हैं इंशाअल्लाह इनमें से टहल कर रहे हैं माशाअल्लाह, 1-2 नौजवान और तैयार हुए हैं, अच्छे अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, खलीफा ताजुश शरीअत, हाफिज़ नामूस रिसालत, अल्लाम मुफ्ती सलमान मिसबाही हदीस साहिब के नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सबर क्या है, शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, बदअकीद और खैरियत नहीं तेरी आला हज़रत का शेर बोलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वास्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। भैया आज हम लोग एक निकाह की तकरीब में हाजिर हैं और यूपी के ख़ास तौर पर रामपुर मुरादाबाद की शादियों के मुतालिक मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ था किसी शादी में जाने का और कभी चाहता भी नहीं था कि यहाँ की किसी शादी में शिरकत करूँ। उसकी वजह यह है कि मुसलमान यहाँ पर जिस तरह से खुराफात में मुब्तला हो गए, जो शादियाँ हमारी हो रही हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अगर इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही ना रहे तो ऐसी शादी जिससे अज़दवाजी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। लेकिन आज यहाँ पर मैं जिस निकाह में हाजिर आया, मुझे ये ख़बर दी गई कि दूल्हा हाजी नबी साहब इन्होंने जिस तरह से इस्लामी तरीक़े से निकाह करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के निकाह की याद ताज़ा की। हुज़ूर के ज़माने का निकाह क्या था? ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़े, लोग इंतज़ार में निकाह के बूढ़े हो जाएं, बच्चियाँ उम्र रसीदा हो जाए, जैसे कि आज के हालात हो गए। जिस किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो बाप उसी दिन से फ़िक्र में मुब्तला हो जाता है, बेटी का रिश्ता कैसे होगा, कितना मांगेगा दामाद। ये जो भिखारी सिस्टम है औरत के घर से मांगने वाला, उससे बेहतर तो वो फ़कीर है जो मस्जिद के बाहर खटोरी लेकर बैठता है। अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए सलामती के साथ और ताकत और क़ुव्वत अता किया है, खुद कमाओ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द वो है जो अपनी कमाई से एक हलाल लुक़मा अपनी बीवी को खिलाता है तो अल्लाह उसको एक सदक़े का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी हुज़ूर की बारगाह में आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे निकाह करना है लेकिन मेरे पास असबाब नहीं, माल नहीं, दौलत कुछ है नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तेरी शादी हो ही नहीं सकती, अगर तू गरीब है तो तेरी शादी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। उस सहाबी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह मदीने के अंसार सहाबा में से किसी एक की बेटी से कर दूंगा, लेकिन महर में देने के लिए कुछ तो ले आओ। महर तो वाजिब है, ये शरई कानून है, महर तो देना पड़ेगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि एक चांदी की अंगूठी भी अगर तुम लेकर के आते हो तो मैं निकाह कर दूँगा। वो सहाबी क्या कहते हैं जानते हैं?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास चांदी की अंगूठी देने की ताकत नहीं है। हुजूर ने फरमाया लोहे की अंगूठी दे दो। तो उस सहाबी ने दोबारा आकर के कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास उतनी भी ताकत नहीं, मैं एक लोहे की अंगूठी भी नहीं खरीद सकता। आप सोचो ऐसे आदमी का निकाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनो। उस सहाबी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुझे कुरान की कोई सूरह याद है? उस सहाबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ ये सूरतें मुझे याद हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजा, मैं फ़लाँ अंसारी सहाबी की बेटी से तेरा निकाह करता हूँ और महर में तू कुरान की जो सूरतें तुझे याद है वो अपनी बीवी को याद करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महर ये रखा गया है कि कुरान याद करा देना अपनी दुल्हन, बाकी माल और दौलत कुछ नहीं था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया निकाह को आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा कर दिया है ना लोगों ने। इस चीज़ को बदलने वाले कौन है? नौजवानों को खड़े होना चाहिए। नौजवानों के अंदर ये हौसला होना चाहिए कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक निकाह करूँ। औरत के घर से भीख मांगना, दुल्हन के घर से जहेज़ लेना, दुल्हन के घर से सारा कुछ खर्चा लेना, ये मर्दानगी की अलामत नहीं है और ना ही इस्लाम से इसका ताल्लुक है। हाँ बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो जहेज़ दिया था, आपको पता है बहुत सारे लोग ये बताते हैं हज़रत फ़ातिमा का जहेज़ क्या क्या था। उनके जहेज़ में खजूर के छाल का बिस्तरा था और मशकेज़ा था पानी का, और मट्टी के कुछ बर्तन और हांडियाँ थी, और चांदी कुछ हुजूर पाक ने महर में रखवाया था। लेकिन आपको बताऊं ये सारा जहेज़ भी हुजूर ने जो दिया था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कमाई से ख़रीद करके ला करके ये सामान इकट्ठा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज यहाँ की जो बुरी रस्म है और यहाँ का जो बुरा रिवाज है, ख़ास तौर पर आपके क्षेत्र में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के आसपास, और आप लोगों के लिए इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आपके करीब हैं, आला हज़रत से करीब रहने वाले हैं, शरीयत के उलूम का बेताज बादशाह, और ऐसे बड़े बड़े उलमा के करीब रहने वाले लोगों को इस्लाम से इतना दूर देख करके बहुत अफसोस होता है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत राई के दाने के बराबर भी है तो ये जहेज़ वाले सिस्टम को ख़त्म करने वाले नौजवानों को खड़े होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इसमें हैरत होती है मुझे, मैं किसी दिन स्टेज पर इसको अर्ज़ करूँगा और मुझे किसी बात का डर नहीं है, खौफ नहीं है। अवाम तो अवाम है। मैंने यहाँ के सुना है कि मौलाना और उलमा भी जहेज़ के चक्कर में पागल है। तो किस काम की पढ़ाई किया है इन्होंने, किस चीज़ की पढ़ाई किया है, कौन से आदमी? बहरहाल अगर वो ऐसे उलमा हैं जो, तो फिर मैं उनके बारे में भी ये कहूँगा कि अगर दीन के अंदर मौजूद खराबी को आप लोगों ने ही शुरू रखा है तो फिर एक बात याद रखें, इमाम गज़ाली ने फरमाया कि आलिम अगर नफिल छोड़ता है तो अवाम सुन्नत छोड़ देता है, और आलिम अगर सुन्नत छोड़ेगा तो अवाम वाजिब छोड़ देती है, वाजिब और फ़र्ज छोड़ने लग जाती है। इसी तरह से एक आलिम अगर हल्की चीज़ को, मकरूह को भी इस्तेमाल करने लगेगा तो अवाम हराम को भी इस्तेमाल करने लग जाएगी कि हमारे जब मौलाना ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो उलमाए दीन की है जो इस बुराई में मुब्तला है, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नायब है कि शरीयत के, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया अगर वो आलिम दीन का इल्म इसलिए हासिल किया है कि दुनिया हासिल कर सके, अपने इल्म की बुनियाद पर अपना मनसब दिखा करके कि मैं मौलाना हूँ, मैं आलिम हूँ, ये दिखा करके अगर किसी से दुनिया हासिल करना चाहता है तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम उस मक्खी से ज़्यादा गलीज़ है जो पाखाने पे बैठा है। अल्लाह ताला
تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین. میں چاہتا ہوں کہ اس برے رسم کا اور اس برے رواج کا خاتمہ آپ حضرات بھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جب ان کی شادی کا موقع آئے گا تو آپ بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ. ابتدا کرو اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب سعادتوں سے نوازے اور اس نکاح کے بعد اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کرو. الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا إسماعيل عليه السلام ذبحا عظيما. الحمد لله الذي كلم الله سيدنا موسى عليه السلام خير كلاما. الحمد لله الذي كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه السلام بعد أن ابتلاه مرضا وسقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا عيسى عليه السلام في النبيين خير مقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم هديا للناس وإماما. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه البليغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي المهدي المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
رب وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا